Good morning, students. Welcome to RPDM Academy. Hope you are doing well for your examinations preparation. And RPDM Academy's videos are also providing, a fruitful videos to you. Hope so. This. So as you can see today, our concept is the sense of collective belongingness. Before moving further, as yesterday I switched off my lecture from the limits of civil disobedience movement. So it was like continued till 1934. So directly हम यहाँ पहुँच गए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. इसके जस्ट आफ्टर भी गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट लॉन्च किए, बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह लॉन्च किए जो कंटिन्यू रहे टिल 1946. लाइक द मेजर जो रोल प्ले किया उन्होंने, ही लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 when the entire world was combating in second world war. At that time also Gandhi ji started quit India movement, भारत छोड़ो आंदोलन. इसके बीच में ऐसे बहुत सारे एक्ट होते रहे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, जिससे हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की हैं आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट्री फॉर्म में. ठीक है, but still all these concepts are not given in your chapter, but I would like to make you clear one more thing here, that don't try to avoid the pictures, the images which are given in history book and politics book, because one mark question can be asked from your politics book out of the cartoons and the pictures and from history book. And second point that is very important, nowadays by going through the sample papers which are circulated by CBSE, I am observing one more thing of related to the case study questions. Like the sources are given in your history book. Sources like something paragraph in a box are given there. So examiner is asking case study questions from these sources. So don't try to avoid these. Okay, go through the sources as well. Like अभी recently जो half yearly जो CBSE sample paper जो circulate हुआ है, in that question a question is there that is from the source, and first question was belonging to that of like, why did Gandhi ji say that non-violence is not the weapon of passive resistance. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सोर्सेज से पुट किए गए, सो प्लीज डोंट ट्राई टू अवॉइड दीज सोर्सेज. एक और चीज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जब 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया, उससे पहले ही HSRA बनाया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बाय भगत सिंह. ठीक है, एंड दैट HSRA मेन एम वाज टू to aware the ब्रिटिश को इस चीज के लिए अवेयर करना कि वो भारतीयों की आवाजें सुने. और इस HSR ने ही क्या किया था, इसी के एक प्रोमिनेंट मेंबर भगत सिंह, जिन्होंने 1929 में असेंबली हॉल में बम फेंक दिया था, और जिसकी वजह से भगत सिंह के ऊपर चार्जेस लगाए गए और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया था. ठीक है, द प्रोमिनेंट मेंबर्स वर देयर भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सारे के सारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर थे, जिनका एक ही मकसद था कि इन बहरों को क्या सुनाना, इन बहरों को भारतीयों की आवाज सुनाना, किसी को हार्म करना नहीं था. जो नेशनल असेंबली में बम थ्रो किया गया था 1929 बाय भगत सिंह, there was no intention of Bhagat Singh to harm anyone. Even he wanted to take the he wanted to create a pressure on the British so that they could fulfill the demand of India. Fine. So this was one more information given in your sources. So I thought that I should share it with you. Chaliye, now come to the today's topic. See, here you can say the sense of collective belongingness. कि ऐसा क्या हुआ, जिससे ऐसा क्या कर सकते थे भारतीय कि जिससे सभी भारत के लोग सिर्फ अपने धर्म, जाति, इन सब को छोड़कर किसके लिए लड़े, इंडिया के लिए लड़े, इंडियन सिटीजनशिप के लिए लड़े. एंड फॉर द सेम द freedom fighters played a major role there. They had decided to
to think about all these things, and the different symbols, the different icons plays role in this direction. Like the first point here you can see, through the experience of united struggle, Indian leaders had partly experienced of collective belongingness. What is collective belongingness? The question arises first here, that refers what? Nationalism. What does nationalism means? A feeling of love and pride. What is nationalism means, Vivek? Feeling of love and pride for its own nation. अपने नेशन के प्रति प्यार होना, इस पे गर्व करना, दिस इज व्हाट? नेशनलिज्म. तो ये भावना लोगों में कैसे पैदा हो सकती थी? इसके लिए इंडियन लीडर्स ने वर्कआउट किया, फ्रीडम फाइटर्स ने वर्कआउट किया, एंड दे हैड लुक्ड फॉर द सेम to create a sense of collective belongingness, like they all Indians are the part of India. Fine. So first of all, they had experience of united struggle. They have opted the things which brought Indian people under a single common aim. Fine. So next, idea of concrete nation. Second was the idea of concrete nation. Though अब तक नेशन की जो एक फिगर थी वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, उसे सॉलिड आइडिया बनाने के लिए कि हाँ हमें सॉलिड ये बनाना है कि भारत, हमें कैसा भारत चाहिए, उसके लिए किसकी जरूरत थी कि जब तक हमारे माइंड में कोई एक फिगर ना हो कि भाई मेरे पास ऐसा होना चाहिए, तो तब तक आप उस चीज को कैसे, उस चीज के लिए कैसे गो थ्रू कर सकते हैं, आप उस चीज के लिए कैसे जील रख सकते हैं. तो दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू हाउ टू क्रिएट अ नेशन स्टेट, टू क्रिएट अ नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन, was tried to forced into a concrete idea. How? Through the different symbols. Like कौन-कौन से symbols use किए गए? Like first of all, image of भारत माता. हमें पता है हम भारत को क्या कहते हैं? भारत माता कहते हैं. लेकिन जो यूरोपियन नेशंस हैं उनके लिए उनके जो नेशंस है वो क्या है? फादरलैंड है. हमारी क्या है? मदरलैंड. इसीलिए आपकी बुक्स में आप कई बार देखोगे आपको शी डिनोट होगा आपके कंट्री के लिए. Because we like dedicated our nation as a mother figure, right? So mother allegory हम मानते हैं, and in the same direction the creation of a nation led through the different symbols, different emotions and different sentiments. Like image of Bharat Mata was created by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870, as you can see on the board. सबसे पहले जो फर्स्ट इमेज थी भारत माता की वो कब क्रिएट की गई थी बेटा? 1870 में की गई थी. बाय हूम? बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. ठीक है. सो अब लोगों के लिए, लोगों के पास एक इमेज हो गई कि वो लड़ रहे हैं, तो किसके लिए लड़ रहे हैं? इफ दे आर स्ट्रगलिंग, सो फॉर हूम? फॉर भारत माता, फॉर देयर नेशन. फाइन. नेक्स्ट, नेशनल सॉन्ग वाज कंपोज्ड एज अ हाइम ऑफ मदरलैंड. हाइम होता है भजन, गीत, कि अपनी मदरलैंड के लिए अपने आप को डेडिकेट करना, अपनी डिवोशन शो करना. इसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया? नेशनल सॉन्ग नेम इज वंदे मातरम. ठीक है, जिसे लार्जली संग किया गया एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. हियर ऑलरेडी आई हैव रिटन वाइडली संग एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. अगर आपको ध्यान हो, ये स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था बेटा जी? This Swadeshi movement was launched in 1905 as in the protest of partition of Bengal. जब भारत का ईस्टर्न पार्ट, जो बांग्लादेश, जो वेस्ट बंगाल आज हमारा पार्ट है, उससे पहले ईस्ट बंगाल भी हमारा ही पार्ट था. एक बड़ी सी प्रोविंस थी, बड़ी सी एक प्रोविंस थी बेटा बंगाल, जिसका ईस्टर्न पार्ट क्या कर दिया गया? पार्टीशन कर दिया गया इन ऑर्डर टू स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट. ठीक है, नेशनलिस्ट लीडर्स. फाइन. तो जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया, तब जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसे लार्जली क्या किया गया था? संग किया गया था इन ऑर्डर टू रेज द फीलिंग ऑफ सिंगल आइडेंटिटी. Understood this? So to create what? Collective belongingness, widely sung the national song. Later on it was included in the Bankim Chandra Chatterjee's famous novel what? Anand Mat. वंदे मातरम को किसमें इंक्लूड कर दिया गया बेटा जी? It was included in Anand Mat.
Later on, it was included in Anand Math by Bankim Chandra Chatterjee. Next, इसके साथ साथ अब ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है, भारत माता की इमेज बनाई गई, जिससे लोगों को एक फिगर मिली कि उन्हें उसके लिए लड़ना है, उन्हें उस फिगर के लिए लड़ना है, वही यही उनका देश है, यही भारत माता की आजादी के लिए उन्हें ब्रिटिश से लड़ाई करनी है। इसके साथ साथ अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भी क्या बना दी थी बेटा, भारत माता की जो पोर्ट्रेट थी वो पोर्ट्रेट को डिपिक्ट किया था, किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि पहली बार भारत माता की जो पोर्ट्रेट है वो कब पिक्चराइज की गई, तो कब की गई, 1870 में बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चटर्जी, सेम ही है, ठीक है। थर्ड जो रोल प्ले किया वो किसने किया, रोल ऑफ इंडियन फोकलोर्स। फोकलोर्स क्या होती है, लोगों से सुनी हुई कहानियां, ठीक है, लोगों से जो कहानियां सुनी, अपने पास्ट के बारे में जाना। लाइक आज भी आप लोग जब आप छोटे बच्चे थे अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपने कंट्री से रिलेटेड जैसे कि बहुत कहानियां सुनते हैं हम लोग, अपने बच्चों को भी कहानियां सुनाते हैं, तो थ्रू दीज फोकलोर्स, थ्रू दीज फोक टेल्स a feeling of collective belongingness was arised and these folklores, ये जो folklores थी, जो कहानियां थी, जो folk tales थी, जो गीत थे, ठीक है, लोर्स जो गीत थे और folk tales जो कहानियां थी, वो संग की गई by whom, by bards, bards यानी poets के थ्रू संग की गई। इवन इन folklores को कंपोज कलेक्ट करने का काम किया बंगाल में, स्पेशली किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उन्होंने सिर्फ इस चीज के ऊपर डिटरमाइन किया कि वो कॉमन पीपल के बीच जा सके और उनसे उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके पास्ट के बारे में जो एक्सपीरियंस है उसको वो क्या कर सके, कंपोज कर सके। एंड ही डिड द सेम। एंड इन तमिल आल्सो, स्पेशली मद्रास रीजन, तमिल में, तमिल पार्ट में, कहां पर, मद्रास रीजन में बेटा जी, इन्हीं फोकलोर्स को कंपाइल किया बाय हुम, अब 4 वॉल्यूम बुक है, 4 वॉल्यूम बुक में पब्लिश किया by Natesha Sastry. The book name is The Folklore of Southern India, ठीक है, यानी जो कॉमन एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है, उनको पब्लिश किया इन मद्रास रीजन बाय नतेशा शास्त्री, ठीक है। ये वर्क परफॉर्म किया गया इन विच बुक बेटा जी, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। दे रिमेंबर, 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से आपका ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, 5 मार्क का, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, कि how the sense of collective belongingness was emerged in Indian citizen. All these points are very important, belonging to the same concept. Fine. So अब Indian folklores को कंपोज किया गया, folk tales को कंपोज किया गया, poems को कंपोज किया गया, hymns को कंपोज किया गया, ठीक है, जिसके थ्रू लोगों में अपने देश के प्रति प्यार की भावना पैदा हो सके। जैसे कि थोड़ा सा छोटा सा एक कॉमन रियल लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ आपके सामने। जैसे हम जो सोशल मीडिया उसको देखकर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर हमने मूवी देखी, बॉर्डर मूवी देखी, तो हमारा मन करता है कि हम क्या बन जाए, सोल्जर बन जाए, ठीक है। फिर अगर हमने कोई मूवी देखी कि भाई किसी टीचर की स्टोरी से रिलेटेड, फिर हमारा मन करता है मुझे टीचर ही बनना है। सो इट वाज द सेम काइंड ऑफ क्रिएशन कि इन सारी फीलिंग्स को क्या करना था, इमर्ज करना था। बाय हाउ, बाय क्रिएटिंग द कंपोजिशन ऑफ फोकलोर्स एंड फोक टेल्स, ठीक है। और ये काम बड़े अच्छे से किया बहुत सारे जो पोइट्स थे उन्होंने किया, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया और मद्रास में किसने किया, नतेशा शास्त्री ने किया, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो एक बड़ा रोल प्ले किया वो किसने किया, रोल ऑफ नेशनल सिंबल्स, रोल ऑफ नेशनल सिंबल्स लाइक ट्राइकलर एज वी नो दैट कि हमारे कंट्री की पहचान किससे है। आज भी हम अपने कंट्री की जो आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं वो किससे करते हैं, through national symbols. So at that time also, to unite people, to bring them under a single common aim, the tricolor was designed, ठीक है, at that consists red, green and yellow color, ठीक है, and this was designed at the time of the same Swadeshi movement, already I told you, that was launched against the partition of Bengal in 1905. So this tricolor was designed that consists the color red, green and yellow along with उसमें क्या था, आज हमारे पास क्या है, व्हील है, चक्र है, ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या था, एक 8 पत्तियों वाला 8 लोटस थे, ठीक है, 8 क्या थे, लोटस थे। और इसके साथ साथ क्या था बेटा, उस पर क्रिसेंट मून था, अर्धचंद्राकार इस तरह का मून था जो शो करता था किसको, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को शो करता था। एंड
ये पूछ सकता है एग्जामिनर 1 मार्क में क्वेश्चन के व्हाट डज सिंबलाइजेस बाय द क्रिसेंट मून ऑन द फ्लैग दैट वाज डिजाइन्ड इन 1905. तो दिस क्रिसेंट मून shows the Hindu Muslim unity and these 8 lotuses symbolizes what? British provinces. Understood? So this national flag also created a feeling of nationalism among Hindu and Muslim people, between Hindus and Muslim people. एंड इसके साथ साथ गांधी जी ने जब स्टार्ट किया क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, उस टाइम 1921 में गांधी जी ने एक न्यू फ्लैग डिजाइन किया जिसमें कलर कौन कौन से थे, रेड था, ग्रीन था एंड व्हाइट था, और इसके साथ साथ गांधी जी ने उसको रिप्लेस कर दिया था बेटा क्रिसेंट मून को एंड 8 लोटसेस को किसके साथ, स्पिनिंग व्हील के साथ, यानी चरखा आ गया था. दैट सिंबलाइजेस व्हाट कि इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, यूज खादी, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स. फाइन. सो जगह जगह पर जब डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, रैलीज निकाली गई, लोगों ने ब्रिटिश को अपोज किया. सो एट दैट टाइम पीपल होल्ड दिस नेशनल फ्लैग अलूफ, हाई, अलूफ होता है, एंड दे हैव रेज्ड द स्लोगन कि अपने इंडिया को फ्री कराना है. फाइन. एंड इसके अलावा और ऐसा क्या था, ऐसा कौन से ऐसे सिंबल्स थे जिससे लोगों में एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कि वो एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार है, और उन्हें अगर लड़ना है तो किसके लिए लड़ना है, सिर्फ अपनी मदरलैंड भारत माता के लिए लड़ना. दैट इज रिवाइवल ऑफ इंडियन पास्ट. इवन ब्रिटिश ने ये फीलिंग इनहेंस की इंडियन में कि वी पीपल आर अनसिविलाइज्ड, वी पीपल आर प्रिमिटिव, कि हम भारतीय असभ्य हैं, हम भारतीय अनसिविलाइज्ड हैं, इवन वी आर सो इंफीरियर टू ब्रिटिश. ब्रिटिश हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है. बट द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश brought what? Western education, English education, Western culture to us. So उन्होंने भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, और इसकी वजह से इंडियन वेस्टर्न लिटरेचर को रीड कर पाए, पढ़ पाए, समझ पाए, एंड देन इंडियन केम टू नो दैट इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर इज सो सुपीरियर देन वेस्टर्न कल्चर. और दिस फीलिंग इनहेंस superiority and a feeling of fight for our nation among Indian people. So these were some of the symbols, these were some of the feelings which unite Indian people for their country's independence. But at the last I would like to inform you कि ये सारी चीजें भी without problem solve नहीं हुई, because all these icons, all these symbols, all these hands especially belong to which religion? Hindus. ठीक है, हिंदूज से बिलोंग करने वाले थे. सो एट दैट टाइम ऑल्सो, आफ्टर दैट, आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑल दीज, Muslim people felt alienated and they had realized that they would lose their past, their culture. So this was the only feeling behind the partition of Pakistan from India. Fine. Now I have completed your chapter 2, nationalism in India, and my students have demanded that I should make video of chapter 1 from that is nationalism in Europe and creation of nation states. So further I will start that chapter. Thank you so much. Have a good day.